ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝ ਕੰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੂਝੀ ਤਪਤ ਘਰੇ ਫਿਰ ਆਇਆ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਪਤ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੁਝ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿੰਨ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਗਲ ਸਿੰਗਾਰ ਹੁਣ ਮੁਝੇ ਸੁਹਾਇਆ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗਤ ਦੀ ਘੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਸਤਸੰਗਤ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡ ਪਈ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਕਰਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਹੈ, ਪਾਪ ਹੈ, ਦੋਖ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਮੱਥੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਣੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਂ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਸੰਗਤ ਦਾ ਲਾਭ ਹੈ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਜੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਿਸਰ ਨਹੀਂ ਦਾਤਾਰ, ਵਿਸਰ ਨਹੀਂ ਦਾਤਾਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਨਾਨਕ ਚਾਹੋ ਏਹੋ, ਨਾਨਕ ਚਾਹੋ ਏਹੋ,
नानक चाहो ए हो, नानक चाहो ए हो, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे वाहे गुरु 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 वाहे वाहे गुरु 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 वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सूही राग दे अंदर ये पावन शब्द है। गुरु अर्जन देव महाराज सूही महला पंजवां विच हुक्म करते हैं, भयो किरपाल सत संग मिलाया। बड़ी ही कृपा हुई जो सतगुरु कृपाल होए हैं, जो सत्संगत सानू मिला दिता है। आखो सतनाम श्री वाह। एक होंदा कुसंगत, एक होंदा सत संगत। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗ ਦੀ ਘੜੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੂਝੀ ਤਪਤ ਘਰੇ ਫਿਰ ਪਾਇਆ। ਜਿੰਨੀ ਤਪਤ ਸੀ ਨਾ ਮਨ ਦੀ ਅੱਗ, ਉਹ ਬੁਝ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਗਲ ਸਿੰਗਾਰ ਹੁਣ ਮੁਝੇ ਸੁਹਾਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਗਾਰ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਮਨ ਦੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸਿੰਗਾਰ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਹੈ, ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਭਰਮ ਚੁਕਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਭਰਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ। ਜੈ ਦੇਖਾਂ ਤਹ ਫਿਰ ਹੈ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੋਲਿਓ ਕਪਾਟ ਤਾਂ ਮਨ ਠਹਿਰਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਕਪਾਟ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮਨ ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਠਹਿਰਾ ਵਿੱਚ, ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਹਾਉ ਦੂਜਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਵਾਸਾ ਕਰੋ।
पर वासा किद्दां होना है? सत्संगत दे नाल। कहंदे ने घर दी कोई कीमती चीज़ होवे, मान लो सोना पैसा या नग नगीने चांदी, ये तुसी किसी सेफ जगह लॉकर दे अंदर रखोगे, किसी महंगी वस्तु नूं संभाल के रखते हो। इसी तरह ये नाम है जी, ये गुरबाणी है ना, जड़ी विचार है। सतगुरु महाराज आखते हैं, मैनू सब तो कीमती जगह दो जगह लगियां, सिर्फ दो, जिथे मैं खजाना छुपा सका। वो अज खजाना खोलते हैं, किथे किथे रखते महाराज? सब तो पहला तो धन धन जागदी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के अंदर। आखो सतनाम श्री वाह, जोर दी बोलो सतनाम श्री वाह। गुरु ग्रंथ साहिब जी तो वड्डा जिथे खजाना छुप सके, ये किहड़ी जगह होएगी? ते सतगुरु महाराज फरमांदे हन, दूजा सत्संगत, जिच संगत हर प्रभ वसै जियो। जे मेरी खोज करनी है, रब नूं लभना है या रब दी विचारां दी खोज करनी है, ते सत्संगत मंगिया करो। इत्थे तुहानूं ये खजाने की कीमत और खजाना लभ पेगा। गुरु गोबिंद सिंह जी के जन्म की अज वरतांत लैने आ। पटना साहिब विखे भव लियो, तहीं प्रकाश हमारा भयो। पटना साहिब विखे भव लियो। आज पीर भीखन शाह सैयद मुसलमान, ये पटियाले का फकीर होया जी। ये अपने मुर्शद, अपने सेवकां नाल, चेलियां नाल बैठा है, ते उत्ते पटना साहिब गुरु जी का जन्म हो गया। इनू दर्शन हो गए। देखो अंतरजामी सी, पूरा सी पीर, पटियाले बैठे दर्शन कर रहे गुरु गोबिंद सिंह जी खुदा दे। ते बोलिया, अज धरती ते रब आ गए हैं। ते सजदा उन्हें उल्टे पासे, यानी भाव पूरब दे पासे किता। ते वैसे सजदा ना मुसलमान लोग पश्चिम दे वल करते हैं, यह पूरब दे पासे कर रहे हैं। पूरब पासे भाव पटना साहिब से, ते हाथ जोड़ के अरदासां कर रहे हैं, उत्थे खड़ खड़ के सजदे कर रहे हैं। मुरीदा ने पूछया, अज तुसी सजदा कित्थे कर रहे हो? मुसलमान लोग सजदा पश्चिम वल करते हैं। जवाब दिता, चलो अज तुहानू रब दे दर्शन करा दा। खुदा दे दर्शन, धरती ते खुदा आया। उहदे किन्ने सोहणे शब्द सी गुरु जी दे प्रति श्रद्धा। अपने सारे साथियों नू लैके हुण पटियाले तो रवाना हो गया। पैदल ही पटना साहिब कितना दूर है बिहार। पुराने समय की गल सी, कोई साधन नहीं सी, पैदल ही यात्रा शुरू कर दी गई। जदों जत्था यह पहुंचिया है उधर, मामा किरपाल चंद माता गुजरी कोल पटना साहिब हैगे सन। जदों फकीर की टोली पहुंची तो गुजरी जी घबरा गए। मामा जी नूं कहण लगे, इन्हां नूं टोरो, चंगे वस्त्र दिओ ते थाल भर के माया की भेटा दे दो पीरां फकीरां नूं, ते इन्हां नूं फिर विदा कर दो। मामा जी की रोटी लाई। हुण मामा किरपाल चंद जदों माया लैके भेटा लैके बाहर आया है, फकीरां कोल भीखन शाह जी खड़े हैं, पीर नाल मुरीद, ते बोले कि ये लै लो, माता जी ने खुशी बख्शी है तुहाडे वास्ते, तुसीं इधर आए हो। कहंदे असीं मंगते थोड़ा ना, हाँ असीं इधर कोई मंगन नहीं आए, या असीं कोई वस्तु दे पदार्थ दे लालच च इन्नी दूर नहीं आए।
असी तो रब दे दर्शन करन आए हाँ, अपने खुदा दे दर्शन करा दो। आखो सतनाम श्री वाहे। प्रेम भगती दे पुजारी सन ओ। कृपाल चंद घबरा गए, क्योंकि कई आंदे सन, खुशी का वेला सी, कई लैके चले गए पदार्थ, खुशियां वंड के चले गए। किसी ने मंग नहीं की जो इन्होंने की। पीर भिखन शाह जी ने दीदार बख्शो, सिर्फ होर कुछ नहीं चाहिए, दीदार करन आए हाँ। हुण की होया, कृपाल चंद शरदा देख के माता को पहुंच गए अंदर, ते माता जी ने बेनती करन लग पे, ये नहीं जाते वापस, ये तो पक्के हैं। ते कहते सिर्फ और सिर्फ दर्शन, गुरु जी दे दर्शन कराओ, बालक दे, खुदा दे जो इधर जन्म होया है, दर्शन करवा दो। सच्चे फकीर जागते हैं। माता जी को कहन लगे, माता जी ने सोचा गुरु तेग बहादुर महाराज मना कर गए सी आसाम जान तो पहले कि बड़ा ही बालक का ध्यान रखना, हुण मैं की करा, किस तरह भरोसा कर। कहते लगते तो बहुत श्रद्धालु हैं, दर्शन कहते इतों कुछ पदार्थ भी नहीं खावांगे, लंगर भी नहीं छकांगे, दर्शन सिर्फ दर्शन। कहते ठीक है, फिर दर्शन कराने की आज्ञा मिल गई, पर दूर खड़ जाओ, दूरों हुण दर्शन करा रहे हैं। कपड़े विच बाबा जी ने लपेटिया है, फकीरां दे कोल पहुँच गया। हुण फकीरां ने भी एक युक्ति बनाई, क्योंकि जड़े चेले नाल गए सी ना, वो कहते सानू पता लगे खुदा पूरा इस बच्चे विच आया है, सानू कुछ नज़ारा दिखाओ कौतुक। कहते ठीक है, फिर दिखाने। पीर सैयद जी, पीर जी ने ना, भिखन शाह जी ने 2 कटोरे कुझे मिट्टी दे ना, एक विच दुध ते एक दही लैके अगे हाथ विच रख लिया। दुध वाले उपर मन विच धार लिया कि जदों दुध के उपर हाथ रख देंगे कटोरे ते कुझे ते समझो हिंदुओं के पीर आ गए। हिंदुओं के जे अगर दही दे कुझे ते हाथ रखिया ते समझ लेना अज मुसलमाना दे खुदा आ गए। आखो सतनाम श्री वाह। ये रखिया करनगे साडी। देखो भावना की गल है, धर्म तो सारे एक ही होंदा है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने कभी नफरत नहीं फैलाई, उन्होंने धर्म नाल कभी पीरां नाल भी प्रेम रखिया है। गुरु जी सिर्फ जुल्म नाल उन्होंने टाकरा सी, मुसलमान नाल कौम नाल नहीं सीगा। औरंगजेब नाल कभी टाकरा नहीं सी, उहदे जुल्म नाल सीगा। मुसलमानां नूं ते प्यार करते सी। पीर बुद्धू शाह जी नूं देख लो, पौंटा साहिब वर बख्शे, बाबा जी ने कंगा बख्शे, परिवार सारा वारता पीर बुद्धू शाह ने। इत्थे देख लो, ये पीर भी देख लो, भिखन शाह, ये भी सजदे कर रहा है। पर बाबा जी दूर सन काफ़ी, कुझे भी दूर सन, पीर भी दूर खड़ा सी। बाबा जी ने कहते इतिहास वो बावां ना लंबियां करतियां, बच्चे बच्चा रूप अंदर बावां लंबियां हो गई बाबा जी दी, ते दोनों बावां वड्डियां करके दोनों ही मटकियां ऊपर रख दित्तियां। आखो सतनाम श्री वाह। इहदा भाव की होया? भाव दोनों धर्म दे सहाई होणगे, ना हिंदू ना मुसलमान, सांझा धर्म चलेगा। खालसा राज सिख धर्म देख लो, बल्कि एक तीजा नवा ही खालसा साध। हिंदू मुसलमान के रक्षक है ही सी बाबा जी। वो कुजियां ऊपर हाथ रखिया ना, सारे मुरीद खुश हो गए, नमस्कार करने लगे। कहते वाकई ही भिखन शाह जी ये सच्चे खुदा, ये अंतरजामी है। बच्चे रूप अंदर इन्ना कौतुक, मुरीद खुश हो गए। उन्हों का आना, उन्हों का सजदा कबूल हो गया। इन्नी दूर पैदल होके आए सन, श्रद्धा। एक बारी ना राजा भुज ने रब नूं प्रश्न किया सी कि रब दे दर्शन हो।
रब दे दर्शन राजा भुज मंग रहा। हुण दर्शन हो गए रब दे, क्योंकि भगती बड़ी सी उहदी, दानी बड़ा तगड़ा सी। हुण की होया, रब प्रगट होया है राजा भुज दे अगे। हुण रब ने रूप धारिया है। कहते हैं शेर की सवारी ते रब आया है, शेर की सवारी रब जी। हुण जदों शेर की सवारी ते आया ते रब कहते तुसीं साडे खाण पीण का इंतजाम करो जी, राजा भुज जी तुसीं दानी बंदे। तां पदार्थ रखे राजा भुज ने, कहते साडे शेर भी भुखा है, इनू भी रोटी चाहिए, शेर की रोटी लियाओ। मांस हुंदा शेर की रोटी। राजा भुज कुछ सोचन लग्या तो इन्नी देरी च रब ने ऑर्डर करता, परीक्षा इम्तिहान पाता राजा भुज का भी। कह तुसी अपने पुत्र की बलि दिओ। पुत्र कोल खड़ा है, वोटी रानी कोल खड़ी है राजा भुज दे, ते रब मंग की कर रहा है पुत्र दी। अपने पुत्र नूं इहदा चारा बनाओ शेर का। कौन बनाएगा? ये बड़ा औखी घाटी है। देखो राजा भुज ने इनकार तो कर नहीं सकता सी, रब सामने खड़ा है। फिर भी उन्हें रो रो के ना छुरी कड्डी, छुरी अपनी कृपान कड्डी ते अपने पुत्र का कलेजा बाहर कड्डन लग्या, वड्डन लग्या। पुत्र नूं मार के शेर के अगे पाण लग्या राजा भुज। इन्ना वड्डा दानी सी, पर रोया बहुत, घबरा गया। पर राजा भुज तो भी वड्डे साडे कलगीधर पिता है। वो किस तरह? राजा भुज नूं ते फिर भी रोना आ गया पुत्र दे वास्ते बलिदान देने वक्त। हालांकि दानी सी, रब सामने खड़ा सी, तां भी रो पिया। कहते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जदों शहजादियां दी शहीदियां हो रही सी ना, वड्डे साहिबजादे अखां दे सामने, बाबा अजीत सिंह, जुझार सिंह जी, ते बड़े खुश होके भेजते सी अकाल पुरख वल। कहते मेरे बच्चे सिक्खी स्वरूप अंदर अज कुर्बानियां दे देण ते रब दे दरबार च मंजूर हो जाण, ते मैनू बड़ी खुशी होएगी, ते मैं खुशी अंदर जयकारे छड्डांगा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। इन्ना कलेजा साडे पिता जी दा। छोटे साहिबजादे शहीद होए तां भी दुख नहीं। माछीवाड़े दे जंगल विच लेटे हन सारा परिवार वार के, तां भी दुख नहीं। तां भी शब्द उचार रहे हैं, मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना। अवस्था देखो किधर है, अवस्था उधर मिलन की तड़फ है, बच्चियां दी विछोड़े दी नहीं है, परिवार की। ये शब्द का मतलब है कि रब नाल मैनू विछोड़ा हो गया है। मेरा दिल करता है कि रब मैनू मिल जाए, मैं बैकुंठा दे विच जाके रब दे चरणा विच नाम जपा। उधरों विछड़ के धरती ते आया, क्योंकि बाबा जी ने आप भेजा सी। तपी सी ना बड़े तगड़े। हेमकुंड पर्वत के कोल जिते दर्शन करन जाने, उत्थे तप करते सी गुरु गोबिंद सिंह जी। ते इन्हां नूं स्पैशल भेजा गया सी धरती ते जुल्म मिटाण वास्ते, कुर्बानियां देण वास्ते। ते गुरु गोबिंद सिंह जी अख विच मजाल एक भी हंजू आया होए, इन्ना कुछ होया धरती। राजा भुज इन्ना वड्डा कलेजा दानी पुन्नी, वो भी अज रो रो के बच्चे नूं मारना चाहता है। पर राजा भुज घबरा गया है। रब दे अगे सोचता है कि मैं इन्नी वड्डी कुर्बानी देवांगा कि अपने बच्चे दी। नाल खड़े पुछन लगे क्यों रोंदा है? रब है, रब जो मंगे दे दे। पत्नी भी मन गई, बच्चा आप मन गया, पुत्र भी कहंदा मैनू चीर लो, कोई गल नहीं, मैं प्रवान हो जावां। जदों हुण कट्टन लगे ना, ते उत्थे कहंदे तरबूज बन गया बच्चा, क्योंकि एक इम्तिहान सी, तरबूज का रूप धर गया। हुण तरबूज नूं कट्टिया उन्हें ते परचा पास कर लिया, ते फिर उधर उहदा बच्चा भी जिंदा खड़ा, ते सारा परिवार फिर रल के खुश हो रहा है कि राजा भुज पास हो गया इम्तिहान, क्योंकि उन्हें छुरी तो चला दी सी।
ਖਰਬੂਜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਗਾ ਦਿਲੇਰ ਤੇ ਦਾਨੀ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਹੈ ਇਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਮੰਗਿਆ ਕਰੀਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।